मैं पहले तो दो भ्रम संशोधित करना चाहता हूं। ना मैं भारत सरकार के लिए काम करता हूं, ना भारत सरकार का होकर कुछ कहूंगा यहां और कह सकता हूं, मेरा अधिकार नहीं है। आई एम अ प्योरली एनजीओ टाइप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन। सो आई एम सॉरी इफ आई हैव डिसअपॉइंटेड यू। सेकेंड इज, आई एम नॉट अ प्रोफेसर, मैं अध्यापक नहीं हूं। थोड़ा लिखता हूं, शोध करता हूं, पर प्रोफेसर नहीं हूं। सो नहीं, वो तो आप कह रहे हैं मित्र हैं करके, पर वो यूजीसी तो नहीं मानेगा ना, कहेगा कि मैं प्रोफेसर यूज करता हूं मीन्स आई एम एन इम्पोस्टर। तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट ऑल ऑफ यू, क्योंकि इतना मुझे चढ़ा दिया, मैं खुद ही थोड़ा नीचे आकर आपको संबोधित करने से ठीक रहेगा। आई वॉन्टेड टू, मैं एक विरंबना में हूं। एक तो है करुणा अलंकार जी को देख के मुझे इच्छा हो रहा है बांग्ला में बोलूं। বাংলায় বলাই উচিত, কেন আমরা যখন চিটাগং হিল ট্র্যাক্টের কথা বলছি, এবং আই এম আ বেঙ্গলি হিন্দু, সো অ্যান্ড বাংলা ইজ মাই মাতৃভাষা। বাট দ্য প্রবলেম ইন বাংলাদেশ টুডে ইজ অলসো that you have a greater Arabization that is happening of Bengali. So jol becomes pani, ma becomes amma, baba becomes abba in the Bengali language, which is not acceptable to me. So kintu I think if I speak in Bangla, only Karuna Alankar ji and me will understand, and some of you will understand, but the rest will be, it will be parasparam prashansanti aho rupam aho dhwani. সো আমি মাঝে মাঝে একটু বাংলায় বলবো, কেন আমি আজকে এখানে যে বক্তব্যগুলো রাখবো, এবং সেই বক্তব্যগুলো আমি চাইছি পশ্চিম বাংলার মানুষও শুনুক, কেন আজকে বাংলাদেশে যা ঘটছে কালকে পশ্চিম বাংলায় ঘটবে, এ একেবারে ধ্রুব সত্য। এবং আমরা যদি রুখে দাঁড়াতে না পারি, তাহলে আগামী দিনে, আজ থেকে 70-80 বছর আগে আমাদের সেইখানকার ভিটে মাটি ছেড়ে আসতে হয়েছিল, আজকে পশ্চিমবঙ্গের ভিটে মাটি ছেড়েও আমাদের অন্যত্র চলে যেতে হতে পারে। मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, पर आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने के लिए। एट द ऑनसेट, डॉक्टर सुबोध कुमार जी, मिस सौम्या जी, चेयरपर्सन ऑफ प्राज्ञा स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आई वांट टू रियली थैंक बोथ ऑफ यू। आई वांट टू थैंक करुणा अलंकार भिक्खू जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर and for giving me an opportunity to be part of this very necessary and very important exercise, because this exercise is sending out a very strong message. मैं तो ये कहना चाहता हूं, करुणा अलंकार जी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया, तो हम क्यों ना ये कहे कि 15 अगस्त 1947 में पूर्व बंगला का जहां जहां भारत के तिरंगा फहराया गया था, वो भारत का ही है। ये भी कह सकते हैं कि भाई चलो उस पे भी हम वार्तालाप करें, बातचीत करें। Anywhere on 15th August 1947 where the Indian tricolor was hoisted belongs to India. And we can also say this, it is not my argument. आपने कहा तो नेहरू ने क्या किया, क्यों नहीं किया, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं बता पाएंगे, पर उनका एक आर्ग्यूमेंट था जो सरदार पटेल उस समय समर्थन किया था, कि उस समय इट वाज पूर्व बांग्ला, ওই সময় ছিল পূর্ব বাংলা, তারপরে হলো পূর্ব পাকিস্তান। সেই সময় डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार पटेल ने कहा था, अगर पूर्व पाकिस्तान या अगर पाकिस्तान अपने माइनॉरिटीज को संरक्षण देने में असमर्थ है, तो जितने माइनॉरिटीज पाकिस्तान में है उतना जमीन पाकिस्तान भारत को दे दे, हम उनके माइनॉरिटीज का देखभाल रखभाल हम करेंगे। सीड लैंड and we will settle the minorities there, you don't have to take care of them. These are not my words. I am not advocating division of Bangladesh. All I am saying is there was a discussion in history, and this discussion was generated by Sardar Patel on one side and Dr. Shama Prasad Mukherjee on the other side, and they told Pakistan, they told Jinnah, if you can't take care of your minorities, cede land that you took from India and settle your minorities there in an autonomous region. Now,
Dr. Amit Srivastav is extremely capable, and sir is here. They're all extremely capable to really speak on this in detail. I will touch on a few points and very briefly. It hurts me because my ancestors, मेरे पूर्वज जो थे, वो ढाका विक्रमपुर से आए. अतिश दीपंकर श्री ज्ञान का जगह, उनका जन्म स्थान, मेरे पूर्वज वहीं से आए हैं. और आज ऐसा परिस्थिति है बांग्लादेश का, यहां हमारे बीच महानुभाव सुब्रत बड़ुआ जी आए हैं, महाबोधि सोसाइटी के गवर्निंग बोर्ड मेंबर हैं और बुद्ध त्रिरत्न मिशन के भी हैं, और बहुत ही एकदम से बहुत सक्रिय सदस्य हैं अपने बुद्ध समाज का, बौद्ध समाज का. मेरा यही दुख है सुब्रत जी कि आज बांग्लादेश में कठिन चिवर दान नहीं हो पा रहा है, और वो जहां जहां हो रहा है इट इज बीइंग डन अंडर मिलिट्री प्रोटेक्शन. और यही मिलिट्री है जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट में हमारे इंडिजिनस जो मित्र हैं, यूथ हैं, उनके ऊपर गोली चला रहे हैं, हमला कर रहे हैं और उनके घर बार लूट कर रहे हैं. वाई? यही नया बांग्लादेश है क्या? ये प्रश्न हम पूछे. एक तरफ आप देखिए, नया भारत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तो ये नए भारत में पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है. ये नए भारत में प्रधानमंत्री खुद भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर जो है उसके संरक्षण में खुद भारत के प्रधानमंत्री आगे होते हैं. और पिछले एक दशक जहां जहां भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर रहा है, न सिर्फ भारत में, विदेशों में भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एकदम प्रथम पंक्ति के ऐसे एक विश्व नेता हैं जो इसको संरक्षण दिया है. और दूसरी तरफ देखिए, नए बांग्लादेश में, मैं वो प्रकांड विद्वान का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो बहुत मामूली सा एक भारतीय नागरिक हूं. कहां भाई नोबेल लॉरिएट, उनका नाम कैसे ले सकते हैं हम लोग? हम तो प्रोफेसर भी नहीं हूं. पर ये उन्होंने कहा नया बांग्लादेश, न्यू बांग्लादेश, नतून बांग्लादेश. और ये न्यू बांग्लादेश में क्या हो रहा है? न्यू बांग्लादेश में बुद्ध धर्म अवलंबन जो लोग हैं वो अपने धर्म प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं. एंड फ्रॉम इन द लास्ट 600 डेज, 100 दिन हुआ, 17 नवंबर को बांग्लादेश के एडवाइजर, मैं कभी कभी सोचता हूं को एडवाइस किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान को दे रहे हैं क्या, या किससे ले रहे हैं? या चीफ एडवाइजर यानी जो एडवाइस लेगा किससे लेगा या किसको देगा, यह भी विडंबना है. एंड इन द लास्ट 6 months, in the last 100 days, 2,500 cases were filed till mid-November in connection to July-August trial. Human rights activists, journalists, citizens associated with other organizations, faith, mainly minorities, are being targeted. Parents of victims, dead and injured, are in the dark. They do not know what has happened to their sons, to their daughters, or to their grandson or great-grandsons. And police enlisting politically motivated cases against the pretext of trial of July-August 2024. 8,000 people have been arrested. This is just the tip of the iceberg. सुबोध जी आपने कहा और भिक्खु करुणालंकार जी ने भी कहा कि ये नया बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो हैं, जो इस्लामी राष्ट्र वहां कायम करना चाहते हैं, संपूर्ण तरीके से इस्लामी राष्ट्र, और ऐसा राष्ट्र जो जिसमें कोई संविधान न होगा, जिसमें कोई मानवाधिकार न होगा, जिसमें सिर्फ एक ही कर्तव्य रहेगा, वो इस्लाम शासन जो है उसको वहां लागू करके कायम करना. और जो अ-इस्लामी लोग हैं, যারা অমুসলমান, তারা তৃতীয় স্তরের নাগরিক, তৃতীয় দরজার নাগরিক হিসেবে থাকবে. তাদের নিজেদের কোনো অধিকার থাকবে না, তাদের নিজেদের ভাষা, তাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক অধিকার থাকবে না, তারা সেখানে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে না. তাদেরকে গোলামি করতে হবে সেই রাষ্ট্রের এবং সেই সংবিধানের. और
एक जो बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड, मैं एक ही उदाहरण दूंगा, आपको याद है, मुझे मेरा बहुत व्यस्तता है, सिर्फ अपने कारण के लिए नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होने वाला है, उसके लिए विशेष बैठक है। पर अटल जी का याद यहां बैठ के क्यों आ रहा है? क्यों उसी समय 2001 और 2005 जब बीएनपी और जमात का सरकार था, तब नरसंहार हुआ और वहां माइनॉरिटी पलायन, उस समय हिंदू पलायन, माइनॉरिटी पलायन तब बांग्लादेश से हुआ। सर, यू मस्ट हैव बीन इन द सिस्टम, यू नो इट बेटर। उसके बाद 2005 के बाद अभी अगस्त 2024 में सबसे भयानक नरसंहार और पलायन हो रहा है बांग्लादेश से। और उस समय आपको याद होगा, बीएनपी और जमात का गठबंधन था। जमात जूनियर पार्टनर था, बीएनपी सीनियर पार्टनर था। आज पलट गया है, आज जमात ओनली एंड ओनली सीनियर पार्टनर, बीएनपी सिर्फ ऐसा ही उसके पीछे भाग रहा है। बीएनपी का कोई राजनीतिक अस्तित्व या भविष्य मैं तो नहीं देख रहा हूं। जसीमुद्दीन रहमानी आपने मेंशन किया, करुण अलंकार जी आप नहीं बोल रहे। अंसारे बंगला का चीफ, उनको क्यों जेल में डाला गया था? क्योंकि उनके कहने पे, उनके उस्कावे पे उस समय बांग्लादेश में एक के बाद एक ब्लॉगर्स का हत्या किया जा रहा था। नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी कैंपस, ये नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट रेडिकलाइज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन बांग्लादेश, और उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये ब्लॉगर्स को के जाकर उनका नस काट दिया। एक एक के बाद ये सीरीज शुरू हुआ। इसलिए आज हम जब देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के सामने भारत का ध्वज, तिरंगा के ऊपर ये लोग चल के जा रहे हैं, ये आज नहीं हुआ है, ये तब से ये मानसिकता पल रहा है। और जो सत्ता में थे 15 साल, काम किया है उन्होंने काम किया है, कोशिश किया है बहुत कठिन परिस्थिति में, पर उन्होंने भी नहीं ध्यान रखा कि जो कट्टरपंथी इस्लामी है संगठन है, ये धीरे धीरे वहां पनप रहे थे और धीरे धीरे उनके सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग स्ट्रांग, वहां ताकतवर हो रहे थे। ये पिछले 10-15 साल से ये ताकतवर होकर आगे आज सडनली इन लोगों ने बाहर आया। ये जसीमुद्दीन रहमानी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ये नया बांग्लादेश है क्या? नोबेल लॉरिएट्स गवर्नमेंट इज रिलीजिंग वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस, कुख्यात आतंकवादी जसीमुद्दीन रहमानी। ये जसीमुद्दीन रहमानी लिबरेटेड होके एक हफ्ता के अंदर स्टेटमेंट देता है कि बांग्लादेश के तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखे, भारत अगर कोई आंख उठाकर देखे तो आंख नोच लेंगे, हाथ काट लेंगे, पैर तोड़ देंगे। और ये जसीमुद्दीन रहमानी कह रहा है कि पश्चिम बंगाल को मैं कह रहा हूं कि आप अलग हो जाइए भारत से। और आप मुझे forgive me, I didn't want to make this bring in a political point, पर पश्चिम बंगाल में ऐसा एक नेत्री आज है, जम्मू कश्मीर में ऐसा एक नेत्री है जिसका स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में माइनॉरिटीज के कंडीशन और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के कंडीशन सेम है, इसलिए हमें बहुत सजाग रहना चाहिए। ये जो कश्मीर में मुफ्ती साहिबा ने ये बात कही, ये तो कश्मीर में रह रही है, भारत में रह रही है, संविधान के अंतर्गत रह रही है करके ये बात कह पा रही है। ये पाकिस्तान में अगर रहती बहुत कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान में अगर रहती बहुत कुछ नहीं बोल सकती थी। और पश्चिम बंगाल का तो मैं छोड़ ही देता हूं बात। पश्चिम बंगाल में आज खड़ा होकर जिन लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर पा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल करके एक राज्य है, नहीं तो ये पूरा राज्य चला जाता 1947 में पाकिस्तान में। और हम और ये जो लोग अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये सारे घुमंतु रेफ्यूजी होकर घूमते रहते थे। I want to at the end just make a few more points. You see, we have to remember this report is an extremely important report. And if you go through this report, I have done that. And if you look at from page 31 onwards, the other portion is a historical background it gives. But page 31 onwards, and my sister here, younger sister, made a very important point. She said CHT today is one of the most underdeveloped regions
in Bangladesh. Why? तो भाई नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट है, पहले तो घोषणा कर देना चाहिए था। नया बांग्लादेश में सबसे पिछड़ा हुआ जो इलाका है उसमें सबसे ज्यादा रफ्तार से हम लोग विकास करेंगे। भारत में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है। भारत में किसी डिस्ट्रिक्ट को दो मापदंड से ट्रीट नहीं किया जाता है। नो डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज ट्रीटेड dually. All districts are focused upon, especially the laggard districts. They are focused upon an aspirational district program has started in Bangladesh. CHT not only is one of the most underdeveloped, but you are land grabbing there. You are destroying their indigenous culture. You are ensuring that they become refugees in their own indigenous ancestral land. इससे ज्यादा बड़ा जेनोसाइड क्राइम नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे लंबा लिस्ट है मेरे पास, वो प्रश्न मैं अंत में पूछ के खत्म करूंगा। प्लीज गो थ्रू दिस रिपोर्ट, द साइलेंट जेनोसाइड, व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम सितंबर 2024। यू शोड इन योर वीडियो, यू शोड इट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड माय क्वेश्चन इज, हैव वी हर्ड एनी इंटरनेशनल एजेंसी और फोरम? कहां है जॉर्ज सोरोस भाई? जॉर्ज सोरोस को आपने देखा बांग्लादेश में? मैं तो नहीं देखा। कहां है भाई? पैसा डाले वहां, बोले यूनिस तो उनका मित्र होगा शायद। मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूं आज। मैं अपना संगठन का, अपना विचारधारा का सब बाहर रख के बोल रहा हूं एक व्यक्ति के नाते। एनी इंटरनेशनल एजेंसी has spoken out against the atrocities in CHT? No. And this is what is happening for the last 100 days. And when Yunus was asked on 17th November in his press conference ki this is happening, he said, these reports on attacks on minorities are exaggerated. चिंताविद है, इंटेलेक्चुअल। अभी इंटेलेक्चुअल कुछ भी घुमाकर बोल सकता है उससे, और वो तो प्रोफेसर है, अधिकृत प्रोफेसर है। And then he says, attacks on minorities are political in nature, not religious. Sir, they are political because they are religious. They are religious because they are political. कहां से आए हैं आप कि आप इसको पूरा डिवाइड कर रहे हैं? These are his words. और सबसे चिंताजनक जो है, आप लोगों ने देखा होगा, ये वीडियो काफी चला भी, सबसे चिंताजनक है ये उपदेष्टा जो है, मुख्य उपदेष्टा के कई उपदेष्टा है, और ये सारे उपदेष्टा भारत विरोधी हैं। ये सारे उपदेष्टा माइनॉरिटी विरोधी है। ये जो आपने करुणालंकार जी ने, आप लोग यहां देखेंगे पेज 32 में, करुणालंकार जी ने यह दिखाया, माइनॉरिटी बुद्धिस्ट, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश formed several commissions for reforms in Bangladesh. One of them is the Commission for Constitutional Reforms, which was formed with 9 members on 7th October 2024. पर क्या अद्भुत है, देखिए, ये 9 मेंबर्स में एक भी माइनॉरिटी ग्रुप के प्रतिनिधि नहीं है, ना बुद्ध है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है। क्यों? You are constituting Constitutional Reforms Commission. So for whom are you doing this constitutional reform? Are you doing this constitutional reform so that Hifazat-e-Islam, Hizb ut-Tahrir, Jamaatul Mujahideen बांग्लादेश, सारे आपके जो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग जमात, they get constitutional status? और are you really serious कि constitutional reforms करके हमको माइनॉरिटीज के हाथ, उनको ताकत देना है, एम्पावर करना है? अवामी लीग को भी मैं कई बार हमने पूछा सार्वजनिक तौर पे कि आप लोग माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं गठन किया? करना चाहिए था, भारत में है। और यही लोग कहते हैं बांग्लादेश माइनॉरिटी, इंडियन माइनॉरिटी सेम कंडीशन। इन हियर वी हैव माइनॉरिटीज हु हैव बिकम प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, यू हैव माइनॉरिटीज हु हैव बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई एम नॉट गेटिंग इनटू हाउ वेल ही डिड, बट ही वाज प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 10 years. You have minorities who are heading minority commissions. You have minorities who are leading institutions
You have minority institutions, you have minority ministry, you have minority commission, and then you say you are equating Bangladeshi minorities with Indian minorities. This is a very insidious argument. हमें बहुत सजाग रहना चाहिए. ये argument के लिए we should not fall for it. We should not fall for this argument. और मैं जो कह रहा था कि a very insidious narrative is being developed. क्या है वो? यह है कि ये मुख्य उपदेष्टा के जो उपदेष्टा है और ये विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, इनमें से एक है शाहिदुज्जमान, प्रोफेसर शाहिदुज्जमान. ये कुछ दिन पहले मिलिट्री ऑफिसर्स को एड्रेस कर रहे थे. কয়েকদিন আগে এই ভাষণ দিচ্ছিল সব ওই সামরিক কর্তাদেরকে, একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিল এবং এই ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পারবে, রয়েছে, তোমরা দেখেওছো হয়. সে কি বলছে? সে বলছে, एंड दीज आर हिज वर्ड्स, ये प्रोफेसर शाहिदुज्जमान मिलिट्री ऑफिसर्स का एक कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहा है ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर. इट इज हिज, दीज आर हिज वर्ड्स. पाकिस्तान इज द मोस्ट रिलायबल ट्रस्टवर्दी अलाय ऑफ बांग्लादेश. सोचिए, जिस देश ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय कत्लेआम किया, नरसंहार किया, जिस देश ने ऐसे बांग्लादेशी इंटेलेक्चुअल्स को कत्ल किया, कुचलाया, दफनाया, उसी ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान बोल रहे हैं आज बांग्लादेश में खड़ा होकर, उनके लोग हमारे तिरंगा के ऊपर चल के जा रहे हैं कि पाकिस्तान इज द मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी अलाय ऑफ बांग्लादेश. But he doesn't stop at that. He says, Pakistan doesn't want us to become a vassal state of India. यानी पाकिस्तान नहीं चाहता है कि हम भारत का एक क्या बने, वैसल स्टेट, एक छोटा सा भारत का अंग राज्य बने, नहीं चाहता है पाकिस्तान. They will do anything to protect us from the Indians. क्या देखिए, what an irony, sir, that today Bangladeshi intellectuals are giving certificate to Pakistan and saying that Pakistan will do anything to protect us from Indians. I think, sometimes we are living in a surreal world. And ये जब उन्होंने कहा, ऐसा लाउड अप्लॉज, कौन अप्लॉज कर रहा है? वही बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स. जिस बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स के हिफाजत के लिए 1500 हमारे जवान शहीद हो गए 71 में. एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट ही सेज दैट बांग्लादेश को न्यूक्लियराइज्ड होना चाहिए. बांग्लादेश को लग रहा है कि उसके पास अभी परमाणु हथियार होना चाहिए. दिस इज न्यू बांग्लादेश. अ कंट्री विच इज सराउंडेड बाय इंडिया फील्स that it needs nuclear weapons to defend itself. But शाहिदुज्जमान कह रहा है नहीं, मैं जब न्यूक्लियराइजेशन का बात कर रहा हूं, ये बांग्लादेश न्यूक्लियर वेपन्स, हथियार तैयार करेगा, अपनाएगा, ये नहीं कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तले जाना चाहिए. यानी 100% न्यूक्लियर प्रोटेक्शन पाकिस्तान विल गिव अस and we will become a nuclear state. साहब, ये बहुत डेंजरस एक पीरियड चल रहा है बांग्लादेश के लिए. ये एक तरफ कट्टरपंथी इस्लामियों को रिहा कर दिया जा रहा है, उनको खुली छूट दे दिया जा रहा है. दूसरे तरफ माइनॉरिटीज, इस्कॉन से शुरू करके बौद्ध भिक्खु, इंडिजिनस पॉपुलेशंस, हमारे इंडिजिनस मित्र जो हैं, उनके ऊपर कत्ल हो रहा है, लूटमार हो रहा है. और तीसरा है रेडिकलाइजेशन ऑफ द थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो रहा है बांग्लादेश में, रेडिकलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. और आज के दिन में ये उपदेष्टा जो है, मुख्य उपदेष्टा और उसके सारे जो उपदेष्टा है, इनके लिए एनिमी नंबर 1 इज इंडिया. और बांग्लादेश में सारे माइनॉरिटीज जो हैं, उनको लगता है ये इंडियन एजेंट्स हैं. इसलिए वो पहले स्लोगन दिया ना, भारत के दलाल बांग्लादेश छोड़ो. और इसी देश में एक आध मूर्ख पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके नेता हैं. इतना भी मूर्ख नहीं है तो बहुत शातिर.
ये स्टेटमेंट इशू किया उनको सपोर्ट करके, यानी दे इशूड स्टेटमेंट सपोर्टिंग दोज हु कॉल्ड शेख हसीना's government and minorities as India's dalals. So I think it's a very complicated situation. I am very clear on this, that if Bangladesh cannot protect its minorities, the present dispensation, if it cannot protect its minorities, there has to be something drastic that needs to be done. We will keep raising our voice in a democratic constitutional manner in a free country like India. This is one thing that we can continuously do. We will keep doing that. এবং করুণালঙ্কার জি, আপনাকে একটা জিনিস অনুরোধ করব, আমেরিকায় যারা রয়েছে, বিদেশে যারা রয়েছে, ডক্টর অমিত শ্রীবাস্তব জি, সৌম্যা জি, স্যার, one thing we should do is whenever there is a possibility of an international forum, we should connect virtually or send across messages and say that this is what is happening in Bangladesh. We are concerned. Many of our roots are in that country, and they represent a minority which has contributed to the creation of Bangladesh. তোমাদের দেশ তো বাংলাদেশ, তোমরা ছেড়ে যাবে কেন? তোমাদের ভিটে মাটি সেখানে। এই বাংলাদেশ কারুর একজনের দেশ হতে পারে না। যারা সেখানে থাকে, পূর্বপুরুষ ধরে রয়েছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম রয়েছে, তাদেরও দেশ বাংলাদেশ। তারা ছেড়ে কেন যাবে? তোমরা বললেই ছেড়ে চলে যাবে নাকি? হয় না। And Subodhji, I think we should also ask, because after all he is a Nobel laureate, है ना? तो हमको पूछना चाहिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर कौशिक बासु, प्रोफेसर प्रणब वर्धन, अभिजीत बैनर्जी, प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी, अमिताभ घोष लेखक, सी ऑफ पॉपीज, कैलकाटा क्रोमोसोम, सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो एटलीस्ट हम लोग तो इकोनॉमिस्ट नहीं है, हम लोग नोबेल लॉरिएट्स नहीं है, पर नोबेल लॉरिएट्स जो बंगाली है, एटलीस्ट वो तो नोबेल लॉरिएट को बोले कि भाई आपका देश का क्या हाल हो रहा है। वो भी नहीं बोल रहा है। So what I am saying is it is a dual policy. These all the names that I have recited, they will immediately jump and say there is a recession of democracy in India. Democracy is in danger in India. All these names will say constitution is in danger in India. But when actually democracy, constitution, minorities are in danger in Bangladesh, they will keep quiet. Because it is their friend who's the chief advisor. And it is a particular religion. It is a particular extremist religion which is ruling in Bangladesh. So naturally they will keep quiet. नहीं तो इनके सारे गल्फ फंडिंग, सब फंडिंग बंद हो जाएगा। ये लोग अगर इसका विरोध करे तो बेचारे विदेश में इनका सब फंडिंग ही बंद हो जाएगा, अवार्ड मिलना बंद हो जाएगा। आज अगर मैं खड़ा होकर बोलूं कि नहीं बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और ये होना चाहिए, वहां तो कितना डेमोक्रेसी है, ये बात अगर मैं बोलूं और मैं ये जो बोल रहा, कोई इसको काट के रील बना के सर्कुलेट कर दे, और कल देखेंगे मुझे 10 जगह इंटरनेशनल इन्विटेशन आ जाएगा भाषण देने के लिए, भाई साहब आप आइए, सर प्लीज कम। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ डिस्कशन is very necessary. I'm very happy you did it. And the Peace Campaign Group and Pragya Spiritual Foundation, I'm very glad that you have shown the boldness, you have shown the commitment, you have shown your determination to bring up this issue. आप कीजिए, हम लोग सारे लोग आपके साथ हैं, और ऐसे इतना जल्दी आपने ये बनाया, I really appreciate this. ऐसे और भी दस्तावेज बने, डॉक्यूमेंट बने, इसको सर्कुलेट हो, कई भाषा में इसका अनुवाद हो। और अभी हमारा फोकस यही है कि इस जो आपने दिया है जिनका तस्वीर, इनके गिरोह से ये बांग्लादेश कैसे मुक्त हो, यही दिस मस्ट बी आवर एजेंडा एंड आवर फोकस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू। नमस्ते।